Hello, what's up, students? Welcome back to Luminary Academy, and today I'm back with a new video. And in this video, I'll be sharing with you the class 10 chapter number 1 chemical reaction and equation. बच्चों दोनों वीडियो को मिला के एक वीडियो बनाया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना है जिसमें मैंने आपसे बहुत सारी डेफिनेशन शेयर करी है। बैलेंसिंग द इक्वेशन को मैंने बताया है कैसे बैलेंस करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। और यहाँ तक कि मैंने जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स है जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं आपको वो भी मैंने शेयर करे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पीडीएफ है। इस वीडियो को मैंने पूरा समझाया है और इस चैप्टर को पूरा कवर किया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड इफ यू वांट द लिंक ऑफ दिस PDF, do let me know. So I'll be sharing the comments. So for that you need to comment on the videos, okay? So that I'll be sharing the link with you. So चलिए देखिए आप पूरा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। So let's start the first topic, that is chemical reaction. Okay, so as the name implies, chemical reaction. You have seen in our day-to-day life that when we cook the food, okay, it converts into a different form, okay, and we cannot get the original food or original vegetables back from the food which we have cooked already. Okay, so that is a chemical change. We cannot get back the original reactants, right? So here if we see, I have one matchstick. Okay, if I burn it, okay, if I light it, see, you can see this wooden part and there is some chemical which help it to burn, okay, which help it to light. If I burn it, can I get it back? Suppose if I burn it, so now it is lighted. Okay, now you can see that there is a gas which is releasing, there is a light. Okay, so you can see the light also, and you can see the reaction which is a chemical reaction. And here we cannot get back the wooden stick of the matchstick back, okay, because this is burned now. So this is a chemical reaction. Okay, so this is a chemical reaction and there is some gas also released. If you see the gas, okay, so this is a basically an example of chemical reaction. Okay, so you can see many other chemical reactions. Okay, suppose if you have seen the rusting of iron. So here if we see this definition, first of all, whenever a chemical change occur, okay, means which cannot be reversed. Okay, so this cannot be reversed. Okay, in the simple word we can say that any reaction which cannot be reversed, that such changes are called chemical change, right? So this changes cannot be reversed, first of all. Secondly, this brings some changes in the object or in the substance which are used for the chemical reaction. For example, changes kya honge? The food get digested in our body. Okay, so after the reaction the food get digested. Okay, so we after that we cannot get the original product or reactants, right? Secondly, rusting of the iron. So if the iron get rusted, okay, rusting is basically when the iron object and or its surface, when it is come in contact with the oxygen, water, moisture, okay, or acid rain, which we generally see in the rainy season. Okay, then the iron surface get oxidized. Okay, because of the oxygen it get oxidized and it become iron oxide. Okay, so this iron oxide is basically rusting. So this is a chemical change. We cannot get the original iron surface back, right? Yeah, original iron product back, right? So respiration, we see that if we see this reaction, many of the time you have seen C6H12O6, when it is in the presence of oxygen, is converted into CO2 plus H2O plus energy, right? Clear? So this is basically a chemical reaction, right? So this is a chemical reaction because glucose converts into CO2, H2O and energy, right? So respiration is also a chemical change. Rusting of iron is a chemical change. Food get digested in our body, that is also a chemical change. Burning of magnesium ribbon, I have made a video on this burning of magnesium ribbon. You can see this video in the, you can scroll the video in the playlist, or we can see in the videos given in my YouTube channel. Okay, so that is a chemical change because we cannot get the magnesium ribbon back. Okay, but this special thing about the magnesium ribbon is it burns with the white flame. Okay students, so काफी easy है chemical reaction को समझना. Okay, now milk left at a room temperature during summer. Now you all know that milk is basically a product which has a lactobacillus bacteria. Okay, and that bacteria basically get active when the temperature is like if the temperature increases they become active. So what we do generally, we generally keep the milk in the lower temperature or in the refrigerator. Okay, so to stop to
बेसिकली लोअर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज, राइट। तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना बैक्टीरिया कम पैदा होंगे, ओके। सो इसलिए हम उसका टेम्परेचर को क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर करते हैं। सो दैट इज द रीजन, ओके, वी डू नॉट कीप द मिल्क एट द लो टेम्परेचर। दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज कैसे, अगर हमने लो टेम्परेचर पे नहीं रखा तो वो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होंगे और वो मिल्क को क्या कर देगा, खराब कर देगा, ओके, जिसको बोलते हैं दूध फटना। तो यही एक रीजन होता है। नेक्स्ट, हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। सो केमिकल रिएक्शन को पता कैसे पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, तो हम इसमें क्या देख सकते हैं, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर। जैसे अभी मैंने मैचस्टिक बर्न करी थी, यू कैन सी द चेंज इन द स्टेट ऑल्सो एंड चेंज इन द कलर ऑल्सो, एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। सारी चीज मैंने आपको दिखा दी थी। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है क्योंकि हीटिंग होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। और मैंने, अगर आपने देखा होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाया था, तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें टेम्परेचर भी मैंने बताया था कैसे चेंज हो रहा है। यू कैन go through the videos whenever you get time, okay, it is available on my channel. Now chemical equation, now chemical reaction is a different thing, chemical equation is a different thing. So जो chemical reaction हम कर रहे हैं, suppose अगर हमने अभी for example अगर मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो वो बनेगी CO2। तो अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, ओके, इफ आई एम राइटिंग दिस इन दिस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्योंकि हम एक इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिस बाय यूजिंग द एरोज एंड द प्लस साइन, ओके। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द साइंटिस्ट, क्योंकि अगर साइंटिस्ट इसको, अगर केमिकल इक्वेशन को बार बार वर्ड्स में लिखेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो मेन एम ये है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बनाते हैं, okay, so it is a shorter way of for representing chemical equation using symbols and arrows, right? So what is the example here? Now example, you can see the example which is given here. When magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted into magnesium oxide, okay. So यहाँ पर reaction दे रखी है, when Mg burns to O2 in the presence of O2, when Mg burns in the presence of O2, it will become MgO. So this is reactant and this is product, you can see here, and this is a symbolic representation of chemical equation. So this is a chemical equation, इसका symbolic representation होता है। अब chemical equation का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब चलते हैं कि ये जो इधर वाला पार्ट है रिएक्टेंट्स, ये हमेशा अपन LHS में ही लिखते हैं। ऐसा बेटा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Mg प्लस O2, एंड इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी प्रोसीड कर सकता हूँ, ओके। सो ये रिएक्शन ऐसे भी सही मानी जाएगी, करेक्ट है। सो ये ऐसे क्यों नहीं लिखी, बिकॉज क्या होता है बेटा, साइंटिस्ट ने एक रूल बना रखा है, वो जो फॉलो करते हैं हम वैसे ही फॉलो करते हैं। बट अगर हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे तो दैट इज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट, सो हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। बट जनरली बुक्स में सीधा लिखा रहता है तो हम भी इसको सीधा यूज करते हैं, राइट। काफी इजी चीज है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि नोट आपको करने की बात यह है कि reactants are written and on the LHS side, मतलब कि this is LHS, एरो के पीछे जो होता है उसको LHS बोलते हैं, right? This is RHS, RHS, okay, and we use plus sign to add the two reactants. Similarly, the product are written on the right hand side with a plus sign between them, right? So काफी easy है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाली रिएक्शन की बात करते हैं। हमने अभी Mg लिया था और उसको ऑक्सीजन में क्या करा था, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था और वो बन गया था MgO, राइट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैग्नीशियम है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, राइट। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, राइट। एंड ये जो MgO बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म। तो वी जनरली राइट फॉर गैस वी राइट G, राइट। For liquid we write L and for solid we write S, and for aqueous, aqueous मतलब होता है बेटा पानी, okay, it is basically in the aqueous form means it has some content of water, right? So this is how we used to represent the physical state of reactants and product. Now balancing chemical equation, बच्चों balancing chemical equation क्यों करनी पड़ती है, पहले तो हम equation को balance ही क्यों करते हैं। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा, ये जो रिएक्शन है पीछे, यहाँ पर मैंने 2MgO लिखा था एंड
2 mg लिखा था यहाँ पर एंड 2 MgO लिखा था यहाँ पर, और यहाँ पर O2 लिखा था। ये ऐसा क्यों हुआ? वाई वी आई हैव रिटन दिस? आपने 9th और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ऐसे रिएक्शन को लिखते हैं, बट कभी इस पे लॉजिक नहीं गया होगा। बट आज मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा जाता है। बेसिकली एक लॉ होता है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो जितना मास आपने रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले लिया था, उतना ही उसके बाद भी होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 में एक एक्टिविटी थी, उसमें वो गैस को स्केप नहीं होने देते, इसलिए वो कॉर्क लगाते हैं और उसका वेट करते हैं। वो तो वेट जब उनका मेजर करते हैं तो उनका वेट ऑलमोस्ट सेम आता है, बट अगर वो कॉर्क हटा देंगे क्योंकि गैस रिलीज होती है, ओके, तो उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, सो जनरली टू नो दिस लॉजिक व्हाट वी डू जनरली इज वी जनरली follow the law of conservation of mass. So balancing chemical equation का मतलब ये होता है the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant side. तो प्रोडक्ट में जितना मास है सपोज, उतना ही मास आपके रिएक्टेंट में भी होना चाहिए। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब ये कि जितना MgO का मास है वो मास हमेशा Mg और O2 का दोनों का मास मिला के होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि O2 और Mg मिलाएं और MgO का मास कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो दैट मीन्स इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, राइट। सो हियर देयर इज अनदर डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स पहले यूज किए थे रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जो अभी तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं। नेम द लॉ बेस्ड ऑन विच द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, सो नेम द लॉ ऑन विच द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, so लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? इसको आपकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवा दी, तो ये इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन के एटम्स को, राइट। तो यहाँ पर लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन में लिखा है Zn, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, ये सारे एलिमेंट, Zn एक एलिमेंट है तो मैंने यहाँ लिख दिया Zn। H2SO4, तो H एक एलिमेंट है, S एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट है, OS एंड O, राइट। इसके अलावा कोई एलिमेंट है नहीं यहाँ पर। तो जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट है वही प्रोडक्ट में भी होंगे ऑब्वियसली। तो हमने क्या करा, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड को हम मेजर करेंगे कि यहाँ पर कितने एलिमेंट है। यहाँ पर आप देखोगे Zn के कितने एटम है, 1 है। यहाँ पर Zn का भी 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 1 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर मैंने H2 के कितने एटम्स है, 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी H2 के 2 एटम्स है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ओके, ये टेबल बनाने का भी तरीका इजी होता है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड लिख के और एलिमेंट लिख दो, सारे एलिमेंट्स को आप लिख दो यहाँ पर, और जितने रिएक्टेंट साइड पे वो यहाँ लिख दो और जितने प्रोडक्ट साइड पे वो यहाँ लिख दो, राइट। फिर उसको बैलेंस करना होता है। अभी तो मैंने ऑलरेडी आपको बैलेंस करके बताई है, इसलिए बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, बट मैं आपके सामने सॉल्व भी करूंगा, डोंट वरी। सो S यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर S कितना है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 दोनों तरफ हो गया। O यहाँ पर 4 है, O यहाँ पर 4 है, तो ये बैलेंस है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हाउ टू बैलेंस, अब इसको बैलेंस करना कैसे, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, इसको मैं वापस लिख देता हूँ क्योंकि इसमें साइन लिखा हुआ है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ओके, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं वरना दिखेगा नहीं, बाद में प्रॉब्लम आएगी। सो CaOH whole twice, and this will give you CaNO3 whole twice 2 plus H2O। आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ओके। बट आपको यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तो है, बट यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ये H इंटू 2 होता है ये, तो 2 इंटू H कितना होगा, H2, राइट। और यहाँ पर H कितना है, 1, तो और यहाँ पर H कितना है, 2। तो मुझे क्या होता है, जो ऑड वाला होता है, सपोज यहाँ पर ऑड वाला कौन है, ये ऑड है, क्योंकि यहाँ तो 2 है, ये 1 है,
ये ऑड है, तो यहाँ मैं 2 लगा दूंगा, मतलब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, राइट। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों, डायरेक्ट मेथड है। आप टेबल बना के भी कर सकते हो, बट मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर 2 हो गया, तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको 2 लिख दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H2 है, ओके, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 4 हो गए, तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ H2 है, यहाँ पर H2 हो गए, तो यहाँ मैं इसको यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। डन। अब मैंने इसको 2 लिखा, तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ये हो गया 2, राइट। तो 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस और CaNO3 होल ट्वाइस और 2H2O, ओके। सो अब यहाँ पर इसकी वजह से क्या हुआ, N कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर भी N, यहाँ पे N ऑलरेडी 2 है, ये और ये N2 है, राइट। तो ये तो N2 ही हो गया। फिर यहाँ पर O कितना है, O यहाँ पर देखो, O यहाँ पर 3 है, और 3 2 6 होता है, तो O यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर O कितना है, तो O इंटू 2 कितना होगा, 2, तो यहाँ पर +2, मतलब टोटल O कितना है यहाँ पर 8 है, राइट। O अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 इंटू O इज 2 एंड 3 2 6, 6 + 2 8, तो यहाँ पर भी O कितना हो गया, 8 हो गया। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन बेटा देखना पड़ेगा, जब तक आप ये 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, बट मैं अभी बहुत सारी, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने बहुत सारी इक्वेशंस ले रखी है, इसको सॉल्व करूंगा मैं आपके सामने, सो डोंट वरी, आपको डरना नहीं है। 2-4 क्वेश्चन देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, पेशेंस रखोगे तो आएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में हमेशा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही हैं कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ओके। ध्यान से देखते हुए चलो। सो O यहाँ पर आ गया है 2, तो मतलब O को बैलेंस नहीं करना है, तो मतलब H बैलेंस हो गया, N बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी N, O और H बैलेंस है। अब मुझे CA बैलेंस करना है। CA क्या है, ये CA, यहाँ पर भी CA, यहाँ पर भी CA, तो जनरली मतलब अगर अपन देखें तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लगेगा कि बैलेंस हुई है कि नहीं। अब मैं इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर देखो आप, ओके, सो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस एंड दिस विल गिव यू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, ओके। तो लेट्स सी कि सही है या नहीं। अब देखो यहाँ पर H कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी H 2 है, ये 2H दोनों काउंट होंगे तो 4H हो गए। यहाँ पर H कितना है, 2 2 4, तो मतलब H दोनों तरफ क्या है, 4 है, ये बैलेंस हो गया। अब N देखो, N यहाँ पर कितना है, अगर ये 2 है तो ये 2 सबके लिए, ये 2H के लिए भी, ये 2N के लिए भी, ये 2O के लिए भी, ओके। तो O के लिए कितना है, ये 3 जो है ना, 3O 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 होगा, तो N कितना हो गया यहाँ पर, N देखते हैं यहाँ पर कितना हो गया। N यहाँ पर अभी तो 1 है, तो N यहाँ पर 1 है, नहीं N2 है, क्योंकि N के आगे 2 लगा हुआ है, तो ये सबके लिए 2 है, तो N2 है, तो यहाँ पर N2 है, और यहाँ पर भी 2 है, देखो क्योंकि ये N है तो ये 2 सबके लिए होता है, ये 2 जो है, ये जो बाहर या 2 लिखा है, ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 2 6 होगा, ओके ना। O जो है, O कितना है, 3 है, यहाँ पर O कितना है, 3 है, नहीं सॉरी ये 3 नहीं होगा, आप देखो 3 2 6 होगा, ये 6, और ये कितना है, 2 इंटू O, तो 8 हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 8 है, क्या यहाँ पर भी 8 है, देख लेते हैं, 3 2 6 और 2 इंटू O 8, तो 6 + 2 8, तो ये दोनों सही है, ठीक है। अब Ca की बात आ रही है, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, ये जो 2 है, अब ये ब्रैकेट है इसके ऊपर, तो ये 2 Ca के लिए नहीं है, Ca के लिए कुछ भी नहीं, Ca कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी Ca 1 है, तो Ca 1 हो गया, तो बैलेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट। काफी इजी है, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं ताकि आपको और पता चलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे NaOH, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, NaOH प्लस H2 है, SO4, ये 2 ऊपर लिखा है या नीचे लिखना चाहिए था, और ये Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी बैलेंस्ड है या नहीं है, देख लेते हैं एक बार। सपोज Na है, मैं एक बार सारे लिख देता हूँ, O है, H है, S है, ठीक है, इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये मैं ऐसे कॉलम बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आता रहे। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट साइड, दिस इज रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट में Na कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 लिख दो, यहाँ पर Na 2 है, यहाँ 2 लिख दो। O में कितना है,
ओ यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब मैंने आपको बताया था ऑड नहीं होना चाहिए, ओ यहाँ पर ऑड है, 1 है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो मैं पहले यहाँ 2 लगाया था क्योंकि 2 लगेगा, नहीं होके भी 2 लगेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 4, तो 6 हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। और यहाँ पर ओ कितना है 4 और यहाँ पर कितना, एक ही है, ये एक ही, तो हमेशा 2 लगेगा, उसको ऑड को इवन बनाना ही पड़ेगा मुझे। ये भी अगर मैं 2 लगाता हूँ अगर सपोज, तो ये 2 लगाया तो मैंने कितना हो जाएगा 2 इंटू ओ और 4 प्लस 2, ये 4 तो ऑलरेडी है और ये 2 इंटू ओ 2 6 हो गया, 4 प्लस 2 6। एच कितना है, एच यहाँ पर देखो ये एच है, ये एच इंटू 2 होगा, एच इंटू 2 2 हो गया और 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 4 हो गया, क्योंकि एच के नीचे 2 है तो मतलब 2 एच 2 टाइम्स है। नाउ यहाँ पर 2 2 सा 4 हो गया, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब एस है, एस कितना बचा, एक एस यहाँ पे भी है, एक एस यहाँ पे भी है, तो दोनों 1 1 हो गए। तो आपको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर n कितना था 2 लगाया था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब मैं आप बोलोगे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया बच्चों, 2 इंटू एन करूंगा तो 2 सबके लिए मैंने आपको बताया था, ये 2 पूरा कॉलम है समझ लो, तो 2 एन के लिए भी, 2 ओ के लिए भी, 2 एच के लिए भी, तो इसलिए एन टू 2 किया, तो 2 एन ए इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इधर भी एन ए ट्वाइस है, तो दोनों बैलेंस हो गई, राइट। काफ़ी इजी बच्चों, आप इतना घबराओगे तो नहीं चलेगा, बहुत इजी है। 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने, बहुत ही सिंपल वे में तरीके में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और सॉल्व करते हैं। अब जैसे NaCl है, NaCl है प्लस AgNO3, ठीक है, ये बना दी, ये है AgCl प्लस प्लस बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, छोटा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा NaNO3, ठीक है। अब करना क्या बच्चों इसमें, NaNO3, अब बच्चों इसमें करना क्या, इसको बैलेंस करना है। देखो Na यहाँ पर 1 है, Na यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। Ag यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है। N यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। O यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो नंबर ऑफ एटम एट द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं। Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। Cl यहाँ पर 2 है, ये देखो बच्चों ये BaCl ऐसे लिखा है, BaCl2 है ये एक्चुअली, 12 नहीं है, BaCl2 प्लस H2SO4 will give BaSO4 प्लस HCl, राइट। तो ये है एक्चुअली। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये Cl यहाँ पर क्या है और यहाँ पर Cl देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑड को इवन बनाना बच्चों यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को वापस लिखूँ, BaCl2 प्लस H2SO4 will give you BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना ही पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया 2, ठीक है। अब देखो Ba यहाँ पर 1 है, Ba यहाँ पर 1 है, Cl2 है यहाँ पर, Cl यहाँ पे भी 2 हो गया और H भी 2 हो गया, ठीक है। H2 इंटू H2, यहाँ पे भी H2 है, S इधर एक ही है, इधर भी S एक ही है, O4 इधर भी है, O4 इधर भी है, तो हो गई बैलेंस, इजी। तो काफ़ी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके NCERT टेक्स्ट बुक में है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे काफ़ी इजीली हो जाएगा। प्लीज़ आपको इसमें बहुत ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब देखो एक काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको होमवर्क में करो। ये जो x और y है, देखो यहाँ पर क्या है, एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है। इस केमिकल इक्वेशन में आपको x की जगह कुछ नंबर लिखना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, और y की जगह कुछ नंबर लिखना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लें, लेके और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए जो PDF बनाया, देखो बच्चों, ये इसलिए बनाया ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाए, आप चैप्टर भी समझ जाओ, और आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो भी समझ में आ जाएगी। और ये PDF मैं आपको वैसे भी दे रहा हूँ, तो आपके पास ये अवेलेबल रहेगा। तो आपको बस ये है कि आपको मुझे हेल्प करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है, आपको मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे ल्यूमिनरी अकेडमी की पेज भी है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी है। मेरे पेज के अंदर मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रखी है बच्चों। अगर आपको मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। यहाँ पर PDF में मेरा नंबर भी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कुछ भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। बट अगर आप यूट्यूब से मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो डू लेट मी नो दैट यू आर अ यूट्यूब, यू फॉलोड मी ऑन अ यूट्यूब एंड यू कॉन्टैक्टेड मी थ्रू यूट्यूब। ओके, सो ईजी रहता है थोड़ा। ओके, सो ये आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं। काफ़ी इसमें से हमने सॉल्व भी कर लिए, जैसे ये वाला सॉल्व हो चुका है। ओके, बहुत सारे सॉल्व हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर से ही मैंने इसको टाइप करे हैं। तो ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पहले इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH, ओके, होल ट्वाइस प्लस CO2 विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कैसे बैलेंस करना है। तो पहले आपको इसको वर्ड इक्वेशन को आपको इस सिंबॉलिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा और फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पर भी मैंने और बहुत सारे क्वेश्चन इसे दे रखे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत काम आएगा, हेल्पफुल रहेगा और ये चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बहुत तरह की होती है, ओके। जनरली अपन 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है वो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 प्रोडक्ट को कंबाइन करोगे तो एक सिंगल कंपोनेंट या सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन यू कंबाइन 2 reactants then it will form a 2 or more products, okay, or it can be 1 product also, it depends, okay। so first reaction इसके लिए ये जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, प्लस वाटर विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, ये जो CaOH होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट, ओके। तो अगर आपको याद है तो मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले ये इस पूरी इक्वेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था कैसे इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज होती है बच्चों, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये बच्चों ये रिएक्शन के अंदर से हीट रिलीज हो रही है। तो मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया था, मैंने टेम्परेचर भी वो थर्मिस्टो वाला मैंने थर्मोमीटर में आपको बताया भी था कैसे इसको हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और उससे पता चलता है कि कितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। सो अब फर्स्ट रिएक्शन है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ओके। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्लाइन भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, केमिकल नेम है। और ये है क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों की राइटिंग बहुत खूबसूरत है, तो आपको थोड़ा कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट में, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम, हम इसको जब यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग, हम इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब बच्चों देखो वाइट वॉशिंग क्या होता है, मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। वाइट वॉशिंग बेसिकली पहले जो जितने भी फोर्ट हुआ करते थे, जितने भी हमारे पास किले हैं, हमारे राजस्थान में बहुत सारे किले आपने देखे होंगे, ओके, इन उदयपुर राजस्थान ऑल्सो, इन जयपुर ऑल्सो देयर आर सो मेनी फोर्ट्स। तो इन फोर्ट्स के अंदर क्या होता है बच्चों कि पुराने ज़माने में सीमेंट और जिप्सम नहीं होता था, तो इन फोर्ट्स के अंदर हम क्या करते थे, हम इसको यूज़ करते थे दैट इज दिस क्या बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम से क्या होता है बच्चों, जब क्विक लाइम को अपन वाटर में मिलाते हैं तो स्लेक लाइम बनता है। उस स्लेक लाइम को हम क्या करते हैं, हम जितनी भी वॉल्स है उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। अब उससे होता क्या है कि जैसे ही वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ, क्योंकि CO2 तो प्रेजेंट है ही इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो जा जाके हवा टकराएगी उस वॉल से, तो जितना टकराएगी उतना वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत है कि जितने भी फोर्ट है उसमें आज भी हम क्या करते हैं, वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी चमक भी क्या होता है, 1-2 दिन बाद सूखने के बाद आती है, बहुत ज़्यादा चमकता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है वो वॉल को। इसलिए हमारे कितने भी फोर्ट है इतने हाइट पे बने हुए हैं, कभी भी ये गिरते नहीं है, ओके। और हमारे छोटे छोटे घर है जो यहाँ पर इतने घर बनाते हैं हम सलिया डाल के, वो भी गिर जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि पुराने ज़माने के लोग जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाते थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो आज भी इतनी मजबूत है और आज भी उतना ईजिली वो हम उसकी उतनी सफ़ेदी और जो हम ताजमहल है हम उसको देख पा रहे हैं, तो वो इसी वजह से बच्चों, ठीक है। तो और एक और चीज़ बच्चों, जब ये रिएक्शन है सेकेंड वाली, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे CO2 से, जब ये अपने आप हम नहीं रिएक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वॉल से हवा टकराएगी तो ये रिएक्शन होगी, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो फॉर
तो मार्बल का भी जो हम जमीन पे पत्थर लगते हैं उसका भी यही फॉर्मूला होता है, मार्बल के लिए भी ये सेम फॉर्मूला है। और इसमें से क्या होता है, जब वो टकराती है हवा तो H2O में रिलीज होती है। अभी जो मैंने फिजिकल स्टेट यूज करी, ये एक्वस है, मतलब इसमें पानी मिला हुआ है, ये गैस की फॉर्म में, ये सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड की फॉर्म में पानी बाहर आता है। ओके, सो सम अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बहुत सारे एग्जांपल है तो कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब हम बर्न करते हैं, मतलब कोयले को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल फॉर्म CO2। अब ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो C एक है यहाँ पर भी C एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनता है, जब हम H2 को और O2 को मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा H2O। बट बेटा ऐसे नहीं बनता है कि आप ऑक्सीजन लेके आए या पानी लेके आए, दोनों को मिला दिया, ठीक है। इट रिक्वायर्ड सम एक्चुअली कुछ कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग ये इजीली बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों गैसेस को जब यहाँ प्लस आएगा, जब इन दोनों को गैसेस को रिएक्ट कराएंगे तो इट विल फॉर्म पानी, ओके, H2। अब ये जो केमिकल रिएक्शन जो बनती है बच्चों, जैसे पानी यहाँ का लेंगे हम, अमेरिका का लेंगे पानी, US का लेंगे, कनाडा का लेंगे, यूरोप से पानी लेंगे, पानी का इक्वेशन हमेशा सेम रहती है। तो इट डजंट चेंज वेदर यू गो टू एनी अदर प्लेस, यू विल ऑलवेज फाइंड द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ वाटर as the combination of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:2, the ratio जो इनका रेशियो होता है, जैसे H2 होता है, ऑक्सीजन O होता है, ठीक है, तो इसका 2:16 होता है, तो 1:8 के रेशियो में डिवाइड होते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं। तो इस रेशियो में आप इसको देख पाओगे हमेशा, कहीं पे भी पानी कहीं का भी हो, यू विल ऑलवेज सी द सेम फॉर्मूला एंड कंपाउंड, ओके, सो सेम कंपाउंड। सो यहाँ पर आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब जो नेचुरल गैस है दैट इज CH4। सो CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ये मीथेन गैस है, इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो जब इन दोनों को बर्न करेंगे तो बनेगा CO2 और H2, ठीक है। CO2 तो गैस रिलीज हो जाएगी और H2 भी गैस है, ये भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकलेगी, एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज होती है इसके अंदर, ओके। एंड लाइट भी आता है, तो लाइट भी आप लिख सकते हैं इसमें, लाइट भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कोल में भी आपके एनर्जी एंड लाइट आप लिख सकते हैं, एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, या हीट, आप एनर्जी की जगह आप हीट लिख दीजिए, हीट एंड लाइट आएगी यहाँ पर, राइट, इजी। अब ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो काफी इजी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, दिस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, okay, this type of reactions are called exothermic reaction during the formation of the product। तो प्रोडक्ट जब बनता है तब हीट भी रिलीज होती है। तो फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मैंने आपको अभी बताया, तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जितनी भी रिएक्शन ऊपर लिखी है सारी एक्सोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम रेस्पायर करते हैं, ये इक्वेशन मैंने अभी बताई थी आपको, ये ग्लूकोज है, इसको O2 में मिक्स करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म CO2 एंड H2O प्लस एनर्जी। तो ये तीनों चीज बनाएगा। तो ग्लूकोज जब हम जब खाना खाते हैं और जब हम ब्रीथ करते हैं तो रेस्पिरेशन शुरू होता है हमारी बॉडी में। वो जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से CO2 रिलीज होती है, मतलब हम जो उसको ब्रीथ आउट कर देते हैं, और वाटर जो हम एक्सक्रीट कर लेते हैं या बॉडी में यूज आ जाता है। एंड एनर्जी जो है वो हम बॉडी को हम जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं उसमें इस एनर्जी यूज आती है हमारी, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो टॉपिक्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं, 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को यहाँ दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप प्लीज इसको ट्राई करो, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों की, जैसे कोई रिएक्टेंट लिया हमने, ठीक है, फॉर एग्जांपल FeSO4, हमने वो रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट को अगर हमने हीट किया या हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई या हमने सनलाइट के अंदर रखा, सो दैट बेसिकली हमको कुछ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और वो बन जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, ठीक है। बट इसके लिए हमको वी नीड टू गिव द एक्सटर्नल एनर्जी, एंड दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो द reaction in which the single substance or single reactant breakdowns and decompose into 2 or more substances. Decomposition reaction can be of 3 types, okay. So this is also known as thermal reaction, thermal decomposition, okay. तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हम हीटिंग करते हैं इसमें, विच इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग। तो अभी देखो हमने FeSO4 है, फेरस सल्फेट है,
फेरस सल्फेट को हमने हीट किया तो ये फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन बच्चों आपको ऐसे कैसे याद करनी है, और जनरली क्या होता है ये इसको बैलेंसिंग फॉर्म में ही लिखते हैं अपन। और मैंने आपको बताया था फिजिकल स्टेट यहाँ पर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, बट यहाँ पर ये गैस बन गई दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, राइट। और ये एक्टिविटी 1.5 में से इक्वेशन बनाई हुई है, तो मैंने बुक के अंदर जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो सारी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसके अंदर सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हुए वो मैंने इंक्लूड किए हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी डेफिनेशन है वो इंक्लूड करिए, रिएक्शंस इंक्लूड करिए, एंड इवन मैंने इसको जो आपकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है वो मैंने बताया है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में करी है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। और पूरा वीडियो एक साथ जब कोलैब करके मैं आपको अपलोड करूंगा वो वीडियो बहुत ध्यान से देखें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और जल्दी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है CaSO4 CaCO3, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने इसको यूज करा था, जैसे अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन CaCO3 ये हमने बनाया था एक्चुअली, ये देखो हमने ये CaCO3 बनाया था, कैसे हमने इसको बनाया था CaOH होल ट्वाइस को जब हम CO2 से रिएक्ट कराएंगे तब CaCO3 बनेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में और CO2 में। तो देखो बच्चों ये क्या करा मैंने, इसको डिकम्पोज कर दिया, राइट। और क्यों कैसे हुआ डिकम्पोजिशन, थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसको हीट किया मैंने, राइट। नेक्स्ट अब अपन इसी में चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब वैसे ही एक और इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये एक्टिविटी 1.6 जो है बच्चों बोर्ड में कम से कम ये 5 से 6 बार पूछी गई है, तो मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि हर बार ये रिएक्शन पूछते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये रिएक्शन इसलिए पूछते हैं बेसिकली क्योंकि देखो जब PbNO3 है, ठीक है, इसको जब अपन डिकम्पोज करेंगे मतलब इसको हीट करेंगे तो एक तो लीड ऑक्साइड बनेगा, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन फ्यूम्स है, तो इसके ऊपर ब्राउन फ्यूम्स के ऊपर ये क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बोर्ड के क्वेश्चन में ये बार बार आया हुआ है बच्चों, इसको लिख लो, याद कर लो, 10th वाले क्लास 10th में जो भी है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको बहुत काम आने वाली है। और आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये अगर चैप्टर आ रहा है तो ये इक्वेशन जरूर पूछेंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, अगर ये इक्वेशन नहीं आई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछी गई इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको तो रट लेना है अपने को, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ कभी रटो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अगर नहीं भी याद होगी तो इसको रट ही लो एक बार, क्योंकि ये तो इक्वेशन आएगी। इसको बैलेंसिंग में पूछ सकते हैं, इसको इक्वेशन में क्वेश्चन बना के किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बच्चों क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जैसे हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होता है, H2 और O2 में ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अब बच्चों हमने आज 3 चीज पढ़ी, एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है, ठीक है, और वो 3 तरह कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक में क्या होता है अभी हम कर लेते हैं फोटोलाइटिक, अभी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पर हम सन की जो रेज होती है उसमें फोटोन्स होते हैं, उनकी मदद से हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब हीटिंग ही प्रोसेस है एक तरह से, बट इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अलग से नाम दिया क्योंकि सनलाइट को यूज कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम क्योंकि गर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द सनलाइट देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय सनलाइट, ओके। सो यहाँ पर देखो आप रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, राइट। तो क्लोराइड एक्चुअली क्लोराइड अलग नहीं होगा, ये गैस तो इवोपरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, तो गैस इवोपरेट हो जाती है, राइट। ऐसे ही आपको सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को आप सनलाइट के बीच में रखोगे तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, ये Ag है, Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, और ब्रोमाइन जो गैस है, ब्रोमीन गैस, वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया हुआ है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है, ठीक है। तो ये ऐसा पूछ सकते हैं विच 2 रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, या विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको लिखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें भी स्पेसिफिकली पूछे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ये जो अभी जितने भी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करी है ये सारी एंडोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि हमको इसको इन रिएक्शंस को करने से पहले हमको इनको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट।
So these the reaction in which we required energy in the form of heat, light or electricity are called endothermic reaction. तो जिनको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है बच्चों, तो इसमें समझना बहुत आसान है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। और एक्सोथर्मिक मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसमें हीट रिलीज होती है। जैसे अपन ने वो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मैंने साइंस एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, अगर आप वो देखोगे तो उसमें कैसे हीट रिलीज हो रही है मैंने टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के आपको बताया भी है, तो वो आप देखिएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये सारे मैंने क्लब अप करके यहाँ पर रख दिया है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया बच्चों, तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपको ये करना है कि इन सबके सॉल्यूशन एक एक को आंसर को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को लिखना है। ठीक है, और अगर आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पर तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये अगर आपने कर लिया और अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो बेस्ट होगा, मतलब इससे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने टॉपिक वाइज, रिएक्शन वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, या इससे पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें कॉम्बिनेशन डिकॉम्बिनेशन दोनों के क्वेश्चन हो, तो दोनों मिला के मैंने यहाँ पर सबके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट करना अपने कमेंट्स के अंदर यूट्यूब के अंदर, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। राइट, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ताकतवर इंसान है, वो किसी कम ताकतवर इंसान को हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मोर पावरफुल पर्सन विल डेफिनेटली डिस्प्लेस द लेस पावरफुल पर्सन। ओके, सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शन, जो मोर पावरफुल है वो लेस पावरफुल को हटा देगा अपने कंपाउंड से। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इसमें सारे मेटल्स हैं, ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी है। ठीक है, अभी जो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी है इसमें क्या होता है, लिथियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, पोटेशियम सबसे लोएस्ट रिएक्टिव है, और कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, तो बेसिकली सबसे हाईएस्ट क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है, फिर उससे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। और अगर अपन नीचे से आए तो गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तभी तो अपन ज्वेलरी बनाते हैं इसकी। फिर प्लेटिनियम की भी ज्वेलरी बनती है, सिल्वर की भी ज्वेलरी बनती है। फिर मर्क्यूरी की तो क्योंकि लिक्विड है इसकी ज्वेलरी बन नहीं सकती। फिर कॉपर है, इसके यूटेंसिल्स बनते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये काला हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती रहती है। हाइड्रोजन है जो गैस है, लीड है, ठीक है, लेड है, टिन, निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तो ऐसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती जा रही है। तो सबसे टॉप पे वो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और पोटेशियम, कैल्शियम जनरली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लिथियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी वजह से अपन क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनी। अब कैसे बनी, देखो ये Fe जो है, Fe यहाँ पर है, कहाँ पर है Fe, इस पूरी रिएक्शन में आयरन का यहाँ पर है Fe। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कहाँ पर है इसमें, तो कॉपर कहाँ है, पहले तो कॉपर को देख लो, कॉपर का Cu, कॉपर ये। ठीक है, अब क्योंकि आयरन, अब अगर अपन सीरीज में ऐसे जा रहे हैं तो आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा। ठीक है, इस कॉपर को हटा देगा। तो आयरन ने क्या करा, इस कॉपर को इसके कंपाउंड, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में से सिर्फ कॉपर को हटाएगा ये, है ना, और Fe खुद अपनी जगह बैठ जाएगा, इसकी जगह बैठ जाएगा। तो ये बन जाएगा FeSO4, तो ये इसकी जगह आ गया, दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है तो बैलेंस होगी, एंड Cu अलग हो जाएगा, मतलब कॉपर को बाहर निकाल देगा। राइट, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, जहां पर क्या होता है, एक्टिविटी 1.9 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है बच्चों। कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, अब इस ब्लू कलर को जैसे ही कॉपर सल्फेट है, अब जैसे ही आयरन इसमें आएगा, डिस्प्लेस करेगा, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये बेसिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा ग्रीनिश कलर का। तो ये फेरस सल्फेट जो होता है वो ग्रीनिश होता है, और जो ग्रीनिश कलर होता है वो Fe के SO4 के कंपाउंड बनाने से होता है। तो फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीनिश कलर का होता है, और Cu अलग हो जाता है। राइट, सो द नेल, जो आपकी नेल है, जो आयरन नेल आपने इसमें पुट करी थी, ठीक है, क्योंकि आयरन इज Fe, ठीक है, तो ब्राउनिश इन कलर हो जाती है। ठीक है, एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो मतलब ये जो Fe है, ये जो जैसे इसमें आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होती है, जैसे इसमें रिएक्ट करेंगे तो ये पूरा ब्लू आयरन नेल जो है वो तो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन जो है वो ग्रीनिश हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। राइट, सो ये रिएक्शंस है,
इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। और बहुत सारी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक है। अब देखो जिंक और कॉपर है, अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर ये रहा, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, राइट, ये रहा कॉपर, कॉपर को हटा देगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो जिंक जब इसको यहाँ पर आएगा तो कॉपर हट जाएगा, तो ZnSO4 और कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, इधर जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, बहुत ईजी। नेक्स्ट, अब लेड, पीवी मतलब लेड एंड कॉपर। अब लेड और कॉपर आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा रिएक्शन में कौन ऊपर आ रहा है। लेड कहाँ पर है अपना, लेड ये रहा, ठीक है, कॉपर ये रहा, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, राइट। तो ये रिएक्शन में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और CO अलग हो जाएगा, तो CO अलग हो गया, ठीक है। सो जिंक, लेड आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, एलिमेंट देन कॉपर, देयरफॉर दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब अगर मैं एक इक्वेशन आपसे ऐसे पूछूं, ऐसे तो आपको आ जाएगा, बट फिर भी मैं एक पूछ देता हूँ कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर लिखा कॉपर प्लस FeSO4, ठीक है, मैंने इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि देखो कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो मतलब यहाँ पर होगी नो रिएक्शन। जैसा आपने बीकर में पढ़ा रहेगा वैसे के वैसा ही रिएक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, उस रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि Fe जो है वो जनरली मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो वो उसको हटा ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक सिंपल आपको मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो ये रहे, हो सकता है ये जो क्वेश्चन हैं वो इससे पीछे जो टॉपिक कवर हुए हैं उसके भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, स्टेट द चेंज इन कलर। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर आपको पता करना पड़ेगा, फिर वो अगर सनलाइट होगी तो सिल्वर का जो कलर होता है, क्योंकि क्लोराइड तो उड़ जाएगा, तो सिल्वर का कलर क्या हो जाएगा वो आपको पता लगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन से बच्चे ये करिए, अगर नहीं आता है डू लेट मी नो, क्वेश्चन नंबर लिख देना, पेज नंबर लिखना, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जब कोई ऐसा दो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, और दो कंपाउंड के अंदर जिसके भी आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये बेरियम क्लोराइड, राइट। अब सोडियम सल्फेट के अंदर दो आयंस है, एक तो Na और एक SO4, Na प्लस और SO4 माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर बेरियम के भी Ba+2 और Cl-2, Cl-1, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो मतलब ये जो है Na वो यहाँ आ जाएगा और जो Ba है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ऐसे ही कंपाउंड रिएक्शन होती है तब इसमें क्या होता है, PPT फॉर्म होता है, एक्सक्यूज मी। तो जब ये कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड आपस में जो इनके आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं थ्रू द बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जब ये एक्सचेंज होते हैं तो बच्चों क्या होता है कि जब ये आयन एक्सचेंज होते हैं तो ये नया कंपाउंड बनाते हैं, बट इस कंपाउंड के बनने के टाइम पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस या येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पर व्हाइट है क्योंकि इस इक्वेशन में व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रिएक्शंस, ओके, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। सो ये जो प्रेसिपिटेट है इस इक्वेशन में क्या होता है कि जो बेरियम सल्फेट है, इसका भी मैं कभी एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा आपको, ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये एक वाइट कलर का पीपीटी होता है और इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बोलते हैं ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती है। अभी इसमें क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी और भी है पॉसिबल, जिसमें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड और ऐसे ही किसी रिएक्शन को दो कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर की पीपीटी फॉर्म होती है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ठीक है, मैं आपको कभी और शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखना भूल गया, ये वही क्वेश्चन था कि इसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और एक और किसी कंपाउंड को मिलाते हैं तो येलो पीपीटी फॉर्म होती है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं मिले तो डू लेट मी नो, वो क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पर कमेंट्स में ताकि सबको शेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इजी, आगे चलते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स, ओके, सो ये आती है रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है।
तो बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, आप किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो इसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, या उसको आप बाहर निकाल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर सपोज मेरे पास सी है, सी की वैलेंसी +2 होती है, ठीक है, या फिर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एमजी लेते हैं, एमजी का क्या होती है, वैलेंसी 12 होती है, ये कितना होता है 282, ठीक है। अब मुझे बताए कि अगर ये 282 है, ये 12 है, एमजी, अगर एमजी में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि 2 इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑब्वियसली बात है कि जितने प्रोटॉन थे वो 12 रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर, सपोज मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ एमजी, राइट, इसके फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और थर्ड शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मैंने बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पर 12 ही थे, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो प्रोटॉन 12 ही होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, +2 का साइन आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना ये बात, क्योंकि कभी कभी ये रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ है या रिडॉक्स हुआ या रिड्यूस हुआ है, तो इस केस में ये जो रिएक्शन है क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुई बच्चों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ पर देखो ये बहुत ईजी है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड करी तो हीट किया इन दोनों को, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। सो व्हेन द कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अ कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर, द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही अपन कॉपर को हीट करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कॉपर की सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं कि, क्योंकि देखो अगर बच्चों कॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो कुछ तो बनाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए वो उसकी कोटिंग जो उसकी सरफेस है वो ब्लैक हो जाती है, राइट। अब यहाँ पर लिखा है कि इन दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस, अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कराऊंगा, अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया ऊपर वाले केस में, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड करी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन बेसिकली ये ऊपर आना चाहिए था और ये रिएक्शन यहाँ नीचे आनी चाहिए थी, बट वो ऊपर हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को आप निकाल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अभी Mg का एग्जाम्पल दिया था मैंने, Mg+2, ठीक है, यहाँ पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अगेन क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, ऐड जब करेंगे तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो ऐसा अगर लिखा हो, अगर इस केस में अगर ऐसा लिखा हो तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, और अगर ऐसा लिखा हो तो ये ऐसा लिखा हो तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट, इजी। अब यहाँ पर बच्चों देखो आपको 2 चीज समझनी है कि अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो अपन इस एग्जांपल को देख लेते हैं, वापस से शेयर करता हूँ मैं इससे। CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा, मतलब वाटर बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो रहा है यहाँ पर, एंड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं थे, यहाँ ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट।
अगर ये दोनों काम साथ में होते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझा रखा है मैंने। ये CO, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, देखो CO था कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर ली तो ऑक्सीडेशन। इजी, बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको बस दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल ये रिएक्शन है। तो आई होप ये आपको समझ में आई हो रिडॉक्स रिएक्शन। अब एग्जाम में कैसे पूछी जाती है बेटा, इसके लिए मैं तुमसे और क्वेश्चन शेयर करूंगा। अभी मैंने जितना बताया आप प्लीज इसको ध्यान में रखें, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। अब आता है कोरोजन, ये मैंने आई थिंक लास्ट में शेयर करें, हाँ यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करें, तो आप प्लीज इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पर कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों? इट इज अ प्रोसेस वेयर द मेटल सरफेस इज अटैक बाय द एयर मॉइस्चर और एसिड ड्यू टू एसिड रेन। अब बच्चों क्या होता है कि अपन पॉल्यूशन तो बहुत सारा हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे एसिड गैसेस सब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो उससे क्या होता है बच्चों, जब रेनफॉल होती है, जब रेनी सीजन आता है, रेनफॉल होती है, तो फर्स्ट और सेकंड रेन में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस पानी के साथ मिक्स होकर नीचे आती है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, राइट। और वो एसिड रेन में बच्चों क्या होता है कि उस एसिड रेन की वजह से अपने जो जितने भी आयरन के जैसे गेट्स होते हैं, डोर्स होते हैं, बाहर मेन गेट होता है, उस पर क्या होता है, एक तो एसिड होता है, पानी आ गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, एयर, तो कहीं ना कहीं ये सब आपस में रिएक्ट करते हैं और उस मेटल की सरफेस को अटैक करते हैं, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। अगर ये आयरन में होता है तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, अगर ये किसी और मेटल पे होगा तो उसको कोरोजन बोलेंगे। आयरन के लिए स्पेशल नेम है, ठीक है। बट ये क्या करता है, उस मेटल की सरफेस को हार्म करता है, कैसे, उसकी लाइफ स्पैन है, उसकी लाइफ स्पैन को क्या करता है, कम कर देता है। तो उससे क्या होता है, वो मेटल डिटोरिएट होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में देखा होगा कि कूलर जो होता है वो 2-3 साल यूज करने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसमें पानी यूज होता है बार बार, हवा का रोल है, पीछे से हवा आती है, ठंडा करके आगे फेंकते हैं, तो कूलर की लाइफ स्पैन हमेशा 5-6 साल से ज़्यादा होती नहीं, इसलिए प्लास्टिक के बनने लग गए। सिम्फोनी के जो कूलर होते हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, कंसेप्चुअल उसका पार्ट चेंज कर लिया ताकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए। तो प्लास्टिक यूज करने से क्या हुआ, लाइफ स्पैन बढ़ गई। अगर वो लोहे का होता, एक तो हैवी होता है, दूसरा उसके अंदर जंग लग जाता है, जिसको रस्टिंग बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी सारे इसके सब्स्टिट्यूट आने लग गए आजकल, प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ों से आजकल कूलर बनने लग गए, राइट। तो चलो उसको पढ़ते हैं आगे। सो द एसिड ड्यू टू एसिड अटैक, ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन, वापस से पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस वेयर द मेटल सरफेस अटैक बाय द मॉइस्चर एंड एसिड ड्यू टू एसिड रेन ड्यू टू विच अ मेटल कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेबल फॉर्म, ठीक है। अब एसिड बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन होती है, तो मेटल क्या होता है, एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, या मेटल सल्फाइड फॉर्म कर लेता है, या मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। उससे वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अब वो स्टेबल तो होता है बट उसकी लाइफ स्पैन कम हो रही है, उसकी डिटोरिएशन पावर ज्यादा हो गई, ठीक है, तो मतलब वो जल्दी खराब होने लग जाएगा। सो इट डिटोरिएट्स एंड कोरोड्स द मटेरियल बाय वीकनिंग इट्स स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस में भी खराब कर देता है वो, ठीक है, डल हो जाता है थोड़ा, और ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी खराब हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, देखो ब्लैक कोटिंग ऐसे हो जाती है तो उसकी शाइनिंग थोड़ी कम हो जाती है, आप देखो इसमें शाइनिंग थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जो ओरिजिनल होता है, जो रस्ट हुआ नहीं होता है या कोरोड नहीं होता है, तो उसकी शाइनिंग और इसमें शाइनिंग में बहुत फर्क है, ठीक है। उसके बाद आता है रस्टिंग। अब जो रस्टिंग है, ठीक है, ये आयरन में होती है, राइट। तो रस्टिंग क्या होता है, व्हेन आयरन और अलॉय, आयरन अलॉय, ठीक है, अलॉय मतलब होता है कि आयरन के साथ आप किसी और मटेरियल को यूज करके किसी रेशियो में आप उसको अलॉय बना देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलॉय होते हैं, ब्रॉन्ज होता है, और क्या होता है, ब्रास होता है, ठीक है। तो ये सब अलॉय जो होते हैं बेसिकली ये इसलिए बनते हैं ताकि जो अकेला आयरन होता है वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, तो अगर उसके अलॉय बना देंगे तो उसकी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, अपीयरेंस अच्छी हो जाती है, और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अलॉय यूज करते हैं। तो ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन आए थे, किससे, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रास और ब्रॉन्ज के दो मटेरियल एलिमेंट्स को यूज करके बनता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चेक करते हैं किसको आता है। ये काफी कंपटीशन यूपीएससी और काफी बैंक्स बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ जीके आती है वहां पर पूछा, जनरल साइंस के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन होते हैं वो भी आ सकते हैं, बट ये इसका आंसर दिएगा कमेंट में, ठीक है। सो व्हेन द आयरन और द अलॉय of iron react with the moist air present in the atmosphere, they form a reddish brown layer of iron oxide.
तो जो रेडिश ब्राउन लेयर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, रेडिश ब्राउन लेयर, ठीक है, ये जो लेयर है ये क्या है, फेरस ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड है, इसको रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज सीवियर डैमेज टू द आयरन सब्सटेंस, ठीक है, एंड द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। सो अगर आयरन कोरोड होगा तो उसको रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल नेम है इसके लिए। अब लास्ट 2 टॉपिक बचे बच्चों, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बच्चों, जैसे अपनी जो लेज और जितने भी चिप्स आती है, कुरकुरे आते हैं, इन सब के अंदर एक हवा भरी होती है, ठीक है बच्चों, वो हवा होती है नाइट्रोजन। अगर जो भी चीज़ ऑयल से बनती है, जिसको ऑयल में हम फ्राई करके बनाते हैं, उसको हम ऐसे ही ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या होता है, सिल मार जाएंगे, मतलब सिलन मार जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनका जो फ्रेशनेस है वो कम हो जाएगी, और वो फैट्स और ऑयल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, जिससे वो खोदने लग जाएंगे, डिटोरिएट, ठीक है, खराब होने लग जाएंगे। उसको हम ज़्यादा टाइम या लॉन्ग रन में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियाज फॉर्म हो जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती है, वो खराब होने लग जाता है, ठीक है, डिकम्पोजर्स पर अटैक कर देते हैं। तो इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन हवा भरते हैं, और उसको हवा भरने के बाद उसको सील पैक कर देते हैं, ताकि हवा वो बाहर ना निकले। अगर वो हवा बाहर निकली, इसलिए बोलते हैं ना कि लेज और जो पैकेट्स होते हैं वो लीक नहीं होना चाहिए, अगर लीक होगा तो वो रेंसिड है मतलब खराब है, उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, उनका जो स्मेल है और उनका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, सही बात है। एंड दिस प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप अच्छी नहीं लगी तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन दे एक्सपोज टू द एयर, light, moisture and bacterial action producing short chain and free fatty acid is known as rancidity, ठीक है। ये थोड़ी हाई लेवल डेफिनेशन है, अगर आपको ये पसंद आए तो ये भी सही है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उनको ऐड करते हैं हम ताकि फूड के पार्टिकल्स में क्या हो, ताकि ये रेंसिड ना हो, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये रेंसिड हो गया, ये पूरी बहुत सारे स्पॉट्स देख पा रहे हो, ठीक है, फंगस भी लग गई है इस पर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब एक चीज़ और मैं जो आपको बताना भूल गया कि जो कोरोजन है या रस्टिंग है, इसमें हम क्या होता है बच्चों, हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, हम ऑयल पेंट करके, ठीक है, इसकी आयरन की सरफेस को हम कवर कर दो, या फिर गैल्वनाइज कर सकते हो आप, ठीक है। आयरन की जो सरफेस है उसको क्रोमियम और आयरन की लेयर या आयरन के ऊपर क्रोमियम और किसी और एलिमेंट्स, 2-3 एलिमेंट होते हैं, उनकी लेयर को लगा के हम क्या करते हैं, उसको सरफेस को हाइड कर देते हैं, आयरन सरफेस को, तो अटैक नहीं कर पाते हैं एयर और वाटर, ये क्या होता है, अटैक नहीं कर पाते। और क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है ताकि हवा आयरन से टच नहीं होती, तो ग्रीसिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जैसे आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। तो डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको बताया था मैंने। रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन, इज इट अ सीरियस प्रॉब्लम, ये आपको बताना है। तो ये प्रैक्टिस करोगे बच्चों, काफ़ी अच्छा रहेगा। बोर्ड में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए लिख के दे दिए, ठीक है। बैलेंसिंग जरूर करिएगा, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसको भी PDF चाहिए बच्चों, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको PDF मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वैसे ही ऐसे बांटूँ ताकि लोगों के पास जाए और आप सब इससे हेल्प ले सको, राइट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है दूसरे चैप्टर का, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।